Okay, good morning all. Can you hear me properly? Yes, sir. Okay, let me share my screen. Okay, so you can see my screen, I right? Can you see my screen? Is it Yes, visible? sir. So, yesterday we have seen the concept for right DBMS and RDBMS. Okay, now today we'll see the next concept like how to work with tables, right? Because table is also one of the component of database, right? So how to create table and what are the entities in that table we can put. Okay, so देखिए, first of all we have to understand exactly the table. Can anyone tell me what is table? Collection of columns and rows. Okay, good. Collection of columns and rows. Okay, again. Presentation of data in tabular form. Mm-hmm. Okay, see, simple tables means we should have some meaningful data in the form of rows and columns. Okay, simply if we'll say the rows and columns, then if it is a blank, अगर वो blank है तो उसका कुछ meaning नहीं बनता है ना actual में, at least for database. Okay, we can see it's a table, but इसमें कुछ data है नहीं अभी, तो ये क्या होता है, कुछ meaningless हो जाता है ये. But we should have some meaningful data इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अब मीनिंगफुल डेटा में एग्जांपल देखो, आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा टेबल मतलब होता क्या है एग्जैक्टली. मान लीजिए फर्स्ट होगा आपका, फर्स्ट इज व्हाट, द सीरियल नंबर. ओके, मान लीजिए हम स्टूडेंट की कुछ लिस्ट बना रहे हैं. ओके, देन रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट. ओके, देन इट्स फर्स्ट नेम. ओके, देन इट्स लास्ट नेम. ओके, मान लीजिए पिन कोड and some marks of any exams. Okay, now this type of data we want to store. So आप कैसा करते हो, just for example if you will make a table, you will make a table. Okay, giving serial number. मान लीजिए 11 से start होता है. This is your roll number of student, right? And you are putting again the names, right? ओके, एग्जाम्पल मान लीजिए आप बस क्या कर रहे हो, यहाँ पे मीनिंगफुल डेटा फिल कर रहे हो. नाउ you should know exactly you are putting the string value. String मतलब a set or combination of characters, letters. Okay, अब फर्स्ट टाइम है तो उसके नीचे आप like combination of string ही put करोगे, right? You will not put like this, correct? और यहाँ पे अगर रोल नंबर है तो यहाँ पे कभी नाम नहीं आएगा, right? You will not find the name here. So ये ऐसा क्यों करते हैं हम exactly? Why we are not putting the name in roll number? Because some roll number जो है integer format में. Sorry, I'm not able to hear you. जैसे नंबरिंग फॉर्म में रहते हैं, ये फॉर्मेट में रहते हैं रोल नंबर्स वगैरह, आईडीज वगैरह. Okay, numbering form में रहता है. Okay, चलो. Okay, you are saying it's in numbering format. Okay, I'm giving it as a 12.4432. Is it okay then? It is also number. Roll This is also number. number, right? The data systemic way to gather. No, no. See, you are saying roll number में number चाहिए. So I put number here. So still you think it's correct or not correct? ये भी number ही है ना? It is also number.
Can you say it's wrong? ये सर ये भी नंबर है, लेकिन फिर सर इसको सिंपलर रखते हैं एज नॉर्मली फ्लोट वैल्यू में नहीं रखते हैं, जनरल वे में, ताकि ओके वो रिट्राइव करने में और स्टोर करने में डेटा इजी हो सर। देखिए, मुझे डेटा रिट्राइव करना है तो मुझे ये भी रिट्राइव करते आएगा ना, 12.443 ये भी तो आएगा मुझे करते। What is wrong in that then? Even I can retrieve puja also from this if I want a particular value for a sale. But हम इसको wrong क्यों मानते हैं? Why it is not good practice? रोल नंबर जो है वो इंडिविजुअल मतलब यूनिक आइडेंटिटी है, पूजा नाम के और भी हो सकते हैं। ओके चलिए, आई एम जस्ट पुटिंग वन पूजा हियर एंड यूनिक चाहिए तो ये यूनिक ही हुआ ना, अब तो एक ही है यहाँ पे, रोल नंबर में पूजा की वैल्यू एक ही है और 12.4433 एक ही है, दे आर यूनिक ओनली। इफ यू वांट टू चेक अगेन यू कैन चेक फ्रॉम हियर आल्सो, अगर आपके पास लार्ज डेटा है, इफ यू वांट टू चेक देयर इज नो डुप्लीकेट, इफ यू वांट टू पुट लाइक डुप्लीकेट, अब आएगा डुप्लीकेट आपका एग्जांपल, नाउ यू कैन सी द डुप्लीकेट बट इट्स नॉट डुप्लीकेट राइट। अगर मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, एक ही बार लिखता हूँ पूजा, तो डुप्लीकेट तो है नहीं, यहाँ पे यूनिक ही वैल्यू है। Okay, so see that is the reason why first we have to see the data types in the table. देखो ये भी एक टेबल है, no one can tell कि ये टेबल नहीं है and even no one can tell it's not a valid table. I can see it's a valid table for now. अगर वहाँ पे सेल है और वहाँ पे वैल्यूज है तो मैं उसको क्या मान रहा हूँ, वैलिड मान रहा हूँ। ओके, बट इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस and according to data type how it comes as a invalid. Okay, so we will see, for that we have to see the data type. Okay, data types. Yes. Okay, we have to see the data type. अब data type में generally एक broadly classify करना है हमको, तो हम करते हैं उसको तीन कैटेगरी में। First one is numbers. Okay, then second one is we can say the text. Okay, or the we can say words. Okay, and a new data type, or we can say data type which is not related to number and text, it is called as a date and time. देखो ये तीन डेटा टाइप हम जनरली यूज करेंगे डीबीए में, ओके, डेटाबेस में। अब नंबर्स में देखिए टाइप्स क्या होते हैं, अगेन इन नंबर्स यू विल फाइंड द टाइप्स एज इंटीजर एंड वी कैन से फ्लोट और डबल। अभी होते क्या, मैं एक वन बाय वन बताता हूँ। देखो इंटीजर मैंने अभी जो आपको वैल्यू दिखाई, सो इंटीजर मीन्स विदाउट पॉइंट। Okay, so 11 is integer, 12 is integer, all these values are integer, all these values are also integer, but this is not integer, this becomes a float. Okay, जब point में value आएगी, so integer की value कैसे होगी, int will be the complete value like any number. Okay, like any number. Okay, and the float will be having the point और decimal जिसको हम बोलते हैं। Okay, so like 12.4433 और 7.8 जो भी होगा, that this comes under the float. तो ये डेटा टाइप स्पेसिफाई क्यों करना पड़ा, बिकॉज मेरी कंडीशन थी कि रोल नंबर जो वैल्यूज है दैट शुड बी इंटीजर, तो ये दोनों वैल्यू अब मुझे इनवैलिड मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज माई कंडीशन इज रोल नंबर शुड बी इंटीजर ओनली, नॉट अ फ्लोट एंड नॉट इवन स्ट्रिंग और वेरिएबल। उसको वेरिएबल को VAR बोलते हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। सो इट्स अ इंटीजर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, दी टेक्स्ट और वर्ड्स। टेक्स्ट और वर्ड मतलब हम जितने नाम लिखते हैं या जितने भी कुछ सिटी के नाम जो भी होंगे, ओके, नाउन्स, दे आर कम्स अंडर दिस। एक होता है उसका where and other is varchar. Okay, so here yeah, the data types are two. Okay, no, it's not where, sorry, it's not variable, it's a character.
ओके, सो देर आर टू डेटा टाइप, वन इज कैर एंड वन इज varchar. Varchar मतलब क्या होता है कि जब आपकी जो भी स्ट्रिंग वैल्यू हो, है ना, वर्ड्स हो, इट इज नॉट हैविंग द फिक्स्ड लेंथ, दैट मीन्स वेरिएबल लेंथ होगा. ओके, वेरिएबल लेंथ. मान लीजिए नेम, है ना, नेम ऑफ स्टूडेंट. देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट इज नॉट ऑलवेज ऑफ सेम लेंथ, है. किस नाम में 5 कैरेक्टर हो सकते हैं, किस में 3, किस में 2, रैंडम, राइट. सो वी विल डिनोट इट विद दी varchar. और जब आपको पता है कि उसमें जो फिक्स्ड लेंथ है, फिक्स्ड लेंथ मीन्स मान लीजिए इफ यू हैव सीन दी व्हाट वी कैन से द सिटी कोड इन ट्रेन बुकिंग. ओके, मान लीजिए वहां पे अगर उन्होंने रखा है कि कोई भी सिटी का कोड मेरा 3 या 4 लेंथ तक ही चाहिए. ओके, मान लीजिए 3. सो फॉर पुणे के लिए वो रखेंगे PUN. ओके, फॉर एनी अदर सिटी लाइक मुंबई MUM. सो दिस इज व्हाट द फिक्स्ड लेंथ. दे आर जस्ट कंसिडरिंग द 3 एज द मैक्सिमम लेंथ, not even maximum, fixed length we can say. So when we are using the data type as a char, तो उसकी लेंथ क्या होगी, फिक्स होगी. You cannot decrease it or increase it as per your convenience. But if we are using the data type as varchar, var means variable, char means character. Variable characters means up to certain limit it can accept your like characters. Okay, like it can accept Pune, Mumbai, whatever the city name you can give. Okay, because we are giving it as a variable length. So this is your second data type. And third data type means, see, for date and time there are some formats. Okay, for example, for date we can put it as a 4 number year, then 2 digit month and 2 digit date. Okay, and for time we are putting it as a hours, minute and second. So this is what your format to describe the date and time. Okay, if I am saying the timestamp, so it may be the combination of date and time. Like हमने देखा था कि API में हम जब रिस्पॉन्स लेते हैं तो टाइम स्टैम्प मतलब क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड टाइम. सो इट मे बी इन एनी वे, लाइक, बट वो क्या करेगा, आपको कंप्लीट डेटा इन टर्म्स ऑफ डेट और टाइम बताएगा. सो इट्स YY, अगेन इट्स 2 digit month, 2 digit date, space, then hours, minutes and second. So this is called as what, the timestamp. Okay, ये कंप्लीट आपका टाइम स्टैम्प होगा. ओके, सो इस डेटा टाइप में किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट? So can you easily classify the data if any data is given in this table? Yes, sir. Right? It's very simple. See, यहाँ पे अगर आपको क्लासीफाई करना है तो देखो, मैं पूछूंगा आपको तो आपको बताना होगा कि what we can give as a data type. मान लीजिए यहाँ पे मुझे डेट चाहिए, additional column I am going to add as a date. Simple, in this column serial number we are going to use which data type? Integer. Integer. In this roll number also we are expected to get the integer. So that's why these two value becomes invalid. Okay, these two values becomes invalid. Here in full name, sorry, first name, last name, what we are expecting here in this column? varchar. Varchar. Okay, because we know the name that like first name or last name ये vary होगा length में, तो मैं क्या यूज करूंगा? varchar. Pin code? integer. Integer. Marks? Integer. Now it depends upon, see, yeah, it depends कि अगर मैं मार्किंग सिस्टम में पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ तो I can use a float. If I'm not using any decimal system in marking, then I can put it as an integer. Okay, then date format में तो date ही आएगा. We cannot say it's an integer, char, varchar, कुछ नहीं. Date format में date ही आएगा in terms of 4 digit year, 2 digit month, 2 digit date. Done. So this is what your data types. So you should be very clear with the data type when you are dealing with databases. Okay. Again, automation में भी आपको data का एक meaning होता है. Okay. Now in actual जब आप करोगे practice तो आपको data type की कुछ advanced या complex version भी मिलेंगे, है ना? तो वो क्या होता है, actually अगर वो database उस
रिकॉर्ड का है, मान लीजिए कुछ बैंकिंग सेक्टर का है, तो वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी आपको होगा, बट जनरली इट्स कम्स अंडर इंटीजर। उसके अगेन कुछ सब टाइप्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन इट्स मेमोरी। देखो क्या होता है, एक नंबर है 11, ओके, और एक नंबर है, एक लार्ज नंबर है, मान लीजिए, बोथ आर इंटीजर। ओके, exponent. ओके, सी दिस इज ऑल्सो नंबर, राइट, बट ये और ये नंबर में बस डिफरेंस क्या होगा कि इसकी लेंथ ज्यादा है, तो ये अल्टीमेटली डेटाबेस में कुछ मेमोरी कंज्यूम करेगा, वो ज्यादा करेगा। दैट्स व्हाई इट विल गिव लाइक बिग इंट, बिग इंट मतलब बिग इंटीजर, ऐसे कुछ नाम्स होंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके, दैट डजंट मैटर। अगर आप एक बार उस डेटा को सही से पहचान रहे हो कि इट इज इन टर्म्स ऑफ इंटीजर फ्लोट, दैट इज फाइन, नो नीड टू गेट फॉर द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ओके, उसकी कोई जरूरत नहीं है। For as of now, you should be understanding the main data type as what? The varchar, then char, varchar, integer, float, date, and time. These 6 or these 4 types are sufficient to understand the data. Okay. Okay. So these are your data type. Okay. Now आपको पता है कि डेटा टाइप क्या है। Now you want to इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल, मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको टेबल बनाना है। सिंपली यू वांट टू क्रिएट अ टेबल फर्स्ट। देखो सबसे पहले जैसे हमने स्टेप की थी, हमने क्या किया, एक टेबल बनाया, राइट, एंड वी शुड स्पेसिफाई फर्स्ट लाइक व्हाट आर दी कॉलम्स वी आर गोइंग टू कंसिडर, है ना, व्हाट आर दी कॉलम्स वी आर गोइंग टू कंसिडर, और उस कॉलम्स में क्या है, किस टाइप का डेटा है, विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू put into that column, है ना। Okay, so that is the way to create the table. Okay, so simple, पहले उसका syntax समझ लीजिए, how to create the data into the table. First of all, we have to create the table itself. So table is what? Simple, it's a combination of row and column with some meaningful data. Now what is syntax? अब मैं syntax बताऊंगा आपको। That means while writing your query on the SQL, we can write that syntax. So आपको क्या होगा, exactly आउटपुट मिलेगा जो आप चाहते हो as per that syntax. तो syntax मतलब क्या हुआ अपने जनरल इंग्लिश में, तो इट्स अ प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंस फॉर दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पे SQL लैंग्वेज है, सो इन SQL वी आर यूजिंग द प्रॉपर syntax, तो ये syntax होना चाहिए आपका। Now understand the syntax first. What the syntax is saying, you have to give the keywords as a create. जनरली सिंटैक्स आपका स्टार्ट होता है वर्ब से। क्रिएट इट्स अ वन टाइप ऑफ वर्ब, ओके। सो क्रिएट मतलब क्या करते हैं हम, क्रिएट से वी आर गोइंग टू क्रिएट सम एंटिटी। तो क्रिएट क्या करना है हमको, वी वांट टू क्रिएट द टेबल, ओके। सो क्रिएट, नेक्स्ट कीवर्ड होगा आपका टेबल, एंड उसके बाद होगा टेबल नेम। जो भी टेबल आप क्रिएट करोगे उसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा, लाइक स्टूडेंट डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स, वॉट एवर इट मे बी, राइट, दैट टेबल नेम, ओके, इन ब्रैकेट। उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट देना है। देन कॉलम नेम 1, मतलब जो आपका कॉलम नंबर 1 है उसका नाम क्या है, जैसे हमारे केस में क्या है यहाँ पे सीरियल नंबर, राइट। सो योर नेम इज व्हाट, सीरियल नंबर। देन डेटा टाइप, मैंने अभी बताया डेटा टाइप क्या है इसका फॉर सीरियल नंबर, int. So I am typing here int. This data type will become as a int. Then again in bracket we have to specify the size. Okay, we have to specify the size. Size means what? Exactly उस integer की length कितनी होगी। So मुझे पता है कि वो रोल नंबर 1 to 99 है, तो I can give length as a 2. Okay. Give a minute. Okay, so we can give the length as what, 2. अगर मुझे पता है कि वो 999 तक है वो नंबर, तो मैं इसको लेंथ दूंगा 3. ओके, सो व्हाट, दैट इज योर साइज ऑफ दैट डेटा टाइप। साइज मतलब क्या, मैं अगेन कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। साइज मतलब लास्ट नंबर नहीं मेरा,
है ना, एग्जैक्टली लास्ट नंबर नहीं है, बट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट नंबर जितनी वेरिएबल साइज होगी दैट साइज आई एम पुटिंग हियर. Then again column 2, for example here our column 2 is roll number, so column 2 name क्या होगा आपका, roll number. Again its size is integer and sorry its data type is integer and size we can put accordingly. So example मान लीजिए we want to create a table for a student. Okay, so उसका नाम मैं चाहता हूँ student. The table name is what, student. In bracket first entity में देना चाहता हूँ first column student ID. So I type student ID as a column name. Integer ही क्या है, उसका data type है, and 3 is what, the size of the that data. Next मेरी entity है first name. अगर ये name है तो उसका data type होगा varchar means variable characters और उसका maximum length है 255. Okay, after each column and its entity size we have to give the comma. है ना, देखो यहाँ पे comma है. Now you can write it in next line or you can write it in a straight way. Okay, मैंने यहाँ पे individual नहीं लिखा है, मतलब एक साथ नहीं लिखा है, just to understanding. You can write in a single line also और enter करके आप next line में भी लिख सकते हो. Then your last name again is one type of varchar with its length, comma. We want to see the mock marks for that candidate. Okay, for particular candidate with their ID. Again यहाँ पे मैं consider कर रहा हूँ कि आपके marks क्या है, integer है, so I am giving again its length as a 3 and its city name of the city for a given student. Again I am considering it as a varchar with this length. अब इसके बाद मैं कुछ डेटा नहीं दे रहा हूँ, so simply I am closing the bracket and giving the semicolon to end the sentence. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? That doubt. Yes, बोलिए. Sir, first we create a database, use it, and then create a table, no sir? Yeah, now see, I'm not going to see create the databases. Why? Because database आप जब install करोगे तभी तो possible है database create करना, और in actual practice आपको database already दिया जाता है for testing. देखो database create कौन करेगा? Either database developer or database designer, right? Yes sir. Right, our role is what, tester. आपको in actual practice आप प्रोजेक्ट में जाओगे तो आपको डेटाबेस क्रिएट करने की या फिर डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती. ओके, देयर इज नो नीड टू क्रिएट डेटाबेस. आपको ऑलरेडी क्रिएटेड जो डेटाबेस है लोअर लेन में होगा या एक्चुअल लाइव डेटा होगा, उसका आपको एक्सेस दिया जाएगा डायरेक्टली डेटाबेस का, एंड यू आर जस्ट परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड एक्शंस. तो आप अगर कहोगे कि आपको डेटाबेस क्रिएट करना सीखना है तो दैट इज व्हाट नो यूज फॉर योर स्किल्स. सिंपल. ओके, Okay sir. so we are not going to create the actual database. जो डेटाबेस में एंटिटी है अपने पास, मान लीजिए आपके पास काफी सारे टेबल है डेटाबेस में, तो उस टेबल पे आपको ऑपरेशन करना है एज अ टेस्टर. ओके, यू आर नॉट गोइंग टू वरीड अबाउट हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, और वो डेटाबेस जो क्रिएट किया गया है वो सही है या गलत वो हमको चेक करना है ना. ओके, Okay sir. we are what, we are focusing to our skills as a testers, not with the complete domain. अगर टेस्टिंग में देखोगे तो कोड भी होता है, राइट? फॉर एनी फंक्शनल देयर इज अ कोड, बट हम वो कोड कैसे लिखा गया है वो नहीं चेक करते ना दोस्त. Okay sir. राइट, वी आर जस्ट वरीड अबाउट इट्स फंक्शनलिटी. अगर आप कोड भी देखना चाहोगे तो अगेन यू हैव टू लाइक इंक्रीज योर स्कोप फॉर द अंडरस्टैंडिंग. ओके, Okay आपने जो sir. सवाल पूछा वो उसका फ्लो क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ. ओके, देखो डीबी के कंपाउंड होते हैं, है ना. डेटाबेस क्या होगा, एक कंपाउंड होगा, इसको हम कहते हैं स्कीमा बोलते हैं. जिसको स्कीमा मीन्स अ फोल्डर स्ट्रक्चर. अब आपको फोल्डर स्ट्रक्चर जैसे हम अपना फाइल मैनेजर ओपन करते हैं तो हमको लेफ्ट कॉर्नर में दिखता है कि ये एक फोल्डर है ड्राइव का, उसके बाद दीज आर द सब फोल्डर्स. तो सेम डेटाबेस में क्या होता है, यूआई पे आपको क्या दिखाएगा, एक डीबी होगा और उसमें बॉटम में क्या होगा, फॉर मान लीजिए टेबल 1, ओके, टेबल 2, और कुछ एंटिटी है जैसे स्टोर प्रोसीजर होती है, स्टोर प्रोसीजर 1, स्टोर प्रोसीजर 2, और वी कैन से व्यू 1 और व्यू 2. ये ऑब्जेक्ट होते हैं. अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि व्हाट इज दिस व्यू, व्हाट इज दिस स्टोर प्रोसीजर. अब ये है डीबी जो डिजाइनर होते हैं उनका होता है ये एंटिटी. आपको स्टोर प्रोसीजर कुछ पता करने की जरूरत नहीं होती. ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन टेबल्स, और उस टेबल में भी हमको वैलिडेट जो करना है एज अ टेस्टर, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट.
सो एक्चुअल हम जब डीबी बनाते हैं तो आप हमको इतने सारे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। ओके, इफ यू सी द यूआई ऑफ एक्चुअल डीबी तो आपको क्या दिखेगा, एक डीबी दिखेगा, फिर थोड़ा सा राइट कॉर्नर में थोड़ा सा राइट शिफ्ट आपको उसका टेबल स्ट्रक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर दिखेगा, फोल्डर स्ट्रक्चर। ओके, मान लीजिए अगेन टेबल में कुछ और होगा तो एंटर, और थोड़ा सा अगेन राइट शिफ्ट उसका फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। सॉरी। सो सी, डेटाबेस क्रिएट करना मतलब आपको ये एंटिटी क्रिएट करना है, राइट? एंड इवन इफ यू वांट टू वर्क विद डेटाबेस तो हमको पहले जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसका नाम बताना पड़ता है। ओके, मीन्स व्हेन यू विल राइट योर फर्स्ट क्वेरी टू द एसक्यूएल आपको बताना होगा कि विच डेटाबेस यू आर यूजिंग, सो यूज एंड डीबी नेम। ओके, सेमीकोलन। अब इसका ये सिंटैक्स हुआ, इसका एक्चुअल कैसे लिखोगे आप? यूज डेटाबेस को अपना नाम दिया होगा जैसे कि स्टूडेंट डीबी मान लीजिए। तो इस सेंटेंस का, इस सिंटैक्स का मीनिंग है कि आप इस लाइन के बाद जो भी काम कर रहे हो तो इस स्टूडेंट डीबी नाम के डेटाबेस पे काम कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके इस फोल्डर स्ट्रक्चर में काफी सारे डीबी है, डीबी 1 है, डीबी 2 है, डीबी 3 है, और उस डीबी को आपने नाम भी दिया है। मान लीजिए एक है आपका स्टूडेंट, एक है आपका एम्प्लॉय, तो आप स्टूडेंट डेटाबेस पे काम कर रहे हो। ओके, यू आर वर्किंग ऑन द स्टूडेंट डेटाबेस, तो आपको डेटाबेस पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बट अगेन सी, दिस इज मीनिंगलेस व्हेन यू आर वर्किंग एज अ डीबी टेस्टर। ओके, बिकॉज आपको डेटाबेस क्रिएट नहीं करना है और आपको डेटाबेस डिजाइन भी नहीं करना है। बट इफ स्टिल इफ यू वांट टू लाइक वर्क फ्रॉम द डीबी डेवलपर टू डीबी टेस्टर तो आपको अलग स्कोप से पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, yes Pritam, is it clear now why we are not using first DB or we are not creating the DB first? Clear, sir. Okay, yeah, thank you. तो this is your syntax to create the table। देखो, create database भी होता है। We are not creating the database, we are creating one of the object from the database and that is called as a table। अब DB में store procedure होगा तो create store procedure भी होगा, but we are not creating any store procedure for our testing, right? So this is your syntax for creating table, and in this way example we can put it। So इसमें कोई डाउट है? Okay, now see, yesterday I told you to work with DB we can install both client and server at our end, बट उसके बाद क्या होता है कि हमको क्लाइंट से सर्वर को कनेक्शन करना पड़ता है। जैसे कि हम किसी भी चीज को लॉग इन करते हैं, राइट, बाय गिविंग द क्रेडेंशियल वी हैव टू कनेक्ट द डेटाबेस, दैट मींस सर्वर। तो उसमें कुछ कुछ इश्यू आते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग एनी ओरेकल और टोड, उसमें इश्यू आते हैं। तो सिंपली व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू इज, वी आर इंटरेस्टेड इन द क्वेरीज। इन एक्चुअल प्रैक्टिस भी अगर आप ज्वाइन होते हो और आपको डीबी पे काम करना है तो डेटाबेस का क्लाइंट मीन्स सॉफ्टवेयर और डेटाबेस का सर्वर, ये आपको कहीं पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। सिंपली दे विल गिव अ फॉर्म जहाँ पे बस आपको आपकी डिटेल भरनी है और बताना है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम करते हो। आपको उस डेटाबेस का पूरा एक्सेस और वो टूल ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। यू नो नीड टू इंस्टॉल मैन्युअली। आपको एक रिक्वेस्ट पुट करनी पड़ती है ऑनलाइन एंड दैट विल इंस्टॉल योर टूल्स, वॉट एवर टूल यू रिक्वायर्ड। वो डीबी टेस्टिंग के टूल हो, ऑटोमेशन के टूल हो, पोस्टमैन हो, जो भी हो, आप इंडिविजुअल कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते और इंस्टॉल भी नहीं कर सकते सिस्टम पे। सो इवन आई वाज फेसिंग द इश्यूज, क्योंकि अगर मैं डीबी इंस्टॉल भी करूँ तो उसका कनेक्शन कभी प्रॉपर ना हो तो आपको रिजल्ट नहीं आते। ओके, सो अवॉइड दैट वी आर यूजिंग दिस ऑनलाइन एडिटर। आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is what your online editor। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे SQL लिखा है, we see the number of languages here, right? जो भी लैंग्वेज चाहिए। So हम we are working on MySQL। So here
whatever you will write, it will be considered as a under SQL syntax. आप जो भी यहाँ पे स्निपेट लिख रहे हो, कोड लिख रहे हो, वो किसके अंडर माना जाएगा? इट वी कैन अंडरस्टैंड एज अ SQL. मैं आपको लिंक दे दूंगा. इट्स जस्ट अ वेब लिंक, राइट? आपको बस ओपन करनी है, आप डायरेक्टली इस पेज पे लैंड हो जाओगे. यहाँ पे सिंप्लिसिटी क्या है कि यहाँ पे आप पूरा सिंटैक्टिकली करेक्ट, यहाँ पे एरर फ्री कोड लिख सकते हो, और अगर एरर आएगा तो आपको इस आउटपुट विंडो पे दिखाई देगा बॉटम, राइट? And you have to just, after writing the code, you have to just click on this run or control enter. तो आपको जो भी आउटपुट था with error और without error आपको इस बॉटम में दिखाई देगा. Okay? So first what we are trying to do is a create table. So आपको क्या पता होना चाहिए? Syntax, which I told you. Syntax क्या है? Again I'm repeating. Create table, table name, and in bracket we have to give a format like column name, its data type, and in bracket size. Okay, so मान लीजिए you want to create a table, create table मतलब क्या? कोड वर्ड है. मतलब what we want to create, we are interested to create the table, then we have to give the table name student. Okay, मेरे टेबल का नाम है student. Now next bracket start. अब मुझे क्या करना है? मान लीजिए आई एम जस्ट इंटरेस्टेड फॉर 2 फील्ड्स. सिंप्लिसिटी के लिए हम पहले 2 ही फील्ड देंगे. वन इज व्हाट? रोल नंबर. रोल नंबर इसका डेटा टाइप क्या होगा? इंट. इन ब्रैकेट आई एम गिविंग इट्स लेंथ और साइज 3. देन नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज होने के बाद कॉमा होना चाहिए. देन आई एम गिविंग द फर्स्ट नेम. ओके, what is the data type of for first name? Varchar. Okay, again its size I am considering as a, मान लीजिए 200. Okay, so first I want to create a table which will have just 2 columns, roll number in terms of integer, first name in terms of varchar. अगर मुझे 2 ही फील्ड देने तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? semicolon to end the sentence. Okay, to end the sentence. अब मैं एंटर करता हूँ तो मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट लाइन पे. So I have created the table, right, with 2 fields like integer as a roll number, okay, and varchar as a first name. अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा run. You are seeing success here, right? दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes. So this is a simple syntax to create table. सर ये Okay. क्वेरी केस सेंसिटिव है क्या? No, केस सेंसिटिव नहीं होता है. SQL में कोई भी आपका क्वेरीज केस सेंसिटिव नहीं होता. यू कैन राइट इन कैपिटल, स्मॉल, एनीवे, इट्स नॉट बिग डील. मैंने पहले दिन कहा कि आपका SQL क्वेरी केस सेंसिटिव नहीं होता है. यू कैन मेक इट ऑल इट एज अ पॉसिबल कैपिटल ऑल्सो, अपर लेटर ऑल्सो. ओके, नो वरीज. बट कहाँ पे केस सेंसिटिव होता है वो मैं दिखाऊंगा आपको. इन सम केसेस. सो देखो यहाँ पे मैंने क्रिएट टेबल किया. अब क्रिएट टेबल किया मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली जब मैं क्रिएट टेबल बोलता हूँ तो मेरा मतलब है कि मैंने बस ये कॉलम स्पेसिफाई किए, राइट? आई एम जस्ट स्पेसिफाइंग द कॉलम्स. अब मुझे इसकी वैल्यू पुट करना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट इट्स वैल्यू. तो वैल्यू के लिए क्या कीवर्ड है, किसी को पता है कुछ? हाउ टू fill the values in table? Insert. So we want to insert the values into the table. देखो पहला आपको क्रिएट करना पड़ेगा टेबल. डायरेक्टली अगर आप इंसर्ट करोगे तो वो बोलेगा कि टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है. यू विल गेट एन एरर, राइट? सो नेक्स्ट we have to insert. We have to use the command insert. So insert is used to fill the data into the mentioned table. That means जैसे कि सेम अपडेट हम कर रहे थे किसी रिसोर्स को, तो पहले वो क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए. सिमिलरली इफ यू वांट टू फिल द डेटा इनटू द टेबल, वो टेबल क्या होना चाहिए? पहले क्रिएट होना चाहिए. मेंशन मतलब क्रिएटेड. सो पहले हम क्या करते हैं? टेबल क्रिएट करते हैं. क्रिएट करना मतलब व्हाट? इट विल जस्ट यूज इट्स स्ट्रक्चर एज अ कॉलम एंड इट्स एट्रीब्यूट्स. ओके, अब देखिए इंसर्ट करने के लिए 2 ऑप्शन है अपने पास सिंटैक्टिकली.
फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। इंसर्ट इट्स व्हाट, अ कमांड। इनटू टेबल नेम, अब टेबल नेम मतलब जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है। इन आवर केस द नेम ऑफ द टेबल इज व्हाट, स्टूडेंट, right? Here you can see the student, so I will put it as the student. Then in bracket column 1, column 2, column 3, column 4, मतलब एक column के नाम है ना? In our case what are the two names? One is roll number, second is first name. Okay, as it is देना है आपको। Then bracket close, जैसे मेरे पास दो कॉलम है तो मेरे पास column 1 और column 2 ही आएगा। Bracket close, space, values, values will give or fill the data accordingly। अब values के बाद मैं क्या करूंगा, सेट करूंगा अगेन ओपनिंग ब्रैकेट। उसके बाद अगर ये varchar है, ओके, मतलब नाम है, तो उसको मुझे सिंगल कोट में देना पड़ेगा। और अगर वो नंबर है, इंटीजर है, तो मुझे सिंगल कोट की जरूरत नहीं है। ओके, सिंपल, दैट इज योर फर्स्ट। सो हम ये फर्स्ट सिंटैक्स को ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है वो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इन ब्रैकेट वी हैव टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम्स, नेक्स्ट स्पेस वैल्यूज एंड ओके, कॉलम नेम्स, नेक्स्ट स्पेस वैल्यूज एंड स्पेसिफिक वैल्यूज टू बी फिल्ड इन द टेबल। तो सिंपल यहाँ पे हम ट्राई करेंगे इन दिस ओनली। नाउ व्हाट इज द टर्म वी हैव टू यूज, इंसर्ट। ओके, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अब टेबल नेम क्या है आपका, स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, वैसे भी स्टूडेंट दिख रहा है आपको। सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस, और आप टाइप भी कर सकते हो। तो इसका मीनिंग हो रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड टू फिल द डेटा इनटू द टेबल विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड विद द नेम स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट होगा और आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करना है। व्हाट इज द कॉलम नेम, फर्स्ट कॉलम नेम, रोल नंबर। ओके, रोल नंबर। देन व्हाट इज सेकंड, फर्स्ट नेम। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज। वैल्यूज, नाउ वी जस्ट वांट टू गिव द वैल्यूज डायरेक्टली। रोल नंबर क्या होता है मेरा, इंटीजर, और इंटीजर को मैं सिंगल कोट में नहीं देता हूँ। सिंगल कोट में नहीं देता हूँ मतलब सिंपली आई विल प्रेस 1। यूज डायरेक्टली। रोल नंबर क्या होता है मेरा, इंटीजर, और इंटीजर को मैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इज व्हाट, द varchar, सो इट शुड बी इन सिंगल कोट। सिंगल कोट मतलब आपके एंटर के लेफ्ट साइड में एक बटन होगा। ओके, विदाउट शिफ्ट अगर इसको यूज करोगे तो इट बिकम सिंगल कोट, और यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम देना है। ओके, इज इट क्लियर? मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने स्पेसिफाई किया कि मुझे स्टूडेंट टेबल में डेटा फिल करना है, किस कॉलम के लिए, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, और उसी ही सीक्वेंस में आपको उसके वैल्यू पुट करने। एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ, सिंटैक्स खत्म करता हूँ। ओके, आई विल ट्राई टू रन इट। अगर ये कभी एरर दे तो आपको इसको क्या करना है, रिफ्रेश करके वापस रन करना है। ओके, बिकॉज सेशन कभी कभी आइडल हो जाता है ना, लेंदी क्वेरी हो तो कभी कभी क्वेरी करेक्ट होने के बाद भी एरर आएगा, तो उसको बस रिफ्रेश करो या अगेन एंटर ऑन दिस, click on this run button. We can see the success, right? Means successfully this data is inserted into the table. Okay, simply. अब देखो क्या किया मैंने, टेबल बनाया, उस टेबल में डेटा भी पुट किया अकॉर्डिंगली, है ना, जो भी हो। अब डेटा तो पुट किया, बट डेटाबेस में जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं ये टेबल, तो डेटाबेस को हम रिट्रीव भी कर सकते हैं। मतलब मुझे अब देखना है कि मैंने एक्चुअल में कितने एंटिटी फिल की है इन टर्म्स ऑफ टेबल। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द टर्म, पता है उसके लिए कोई, सिलेक्ट। ओके, तो रिट्रीव के लिए हम करते हैं सिलेक्ट। अब सिलेक्ट क्या करना है मुझे, मान लीजिए सबसे सिंपल टर्म बताता हूँ, सिलेक्ट स्टार। यू हैव टू प्रेस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट, राइट। तो स्टार का मतलब है कि मेरे पास जितने भी एंटिटी है, जितने भी रोज अवेलेबल है इस स्टूडेंट टेबल में, मुझे सब दिखने चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेबल। तो यहाँ पे मैं इसको सेंटेंस को एंड करता हूँ एंड आई विल ट्राई टू रन इट। यू कैन सी एट द बॉटम, इस आउटपुट में दिख रहा है आपको, रोल नंबर 1, फर्स्ट नेम अमित। Are you getting?
Yes. Okay. Now again, if I want to put more values, okay, so I will just use comma. Again मान लीजिए रोल नंबर 2, अगेन स्टूडेंट नंबर 2 का नाम है कुछ, मान लीजिए नीतेश. ओके, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू गिव अ नेम. कैपिटल दीजिए, स्मॉल में दीजिए, डजंट मैटर, वही दिखेगा आपको. अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू रन दिस. See, it will again add that particular entity as a second row. Okay. Are you getting this? Syntax number 1. उसका syntax 1 क्या है कि insert करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Insert into table name in bracket the column 1 name, comma column 2 name. जितने भी कॉलम है उतने कॉलम दीजिए आप, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, वैल्यूज अगेन इन ब्रैकेट, और उतने ही कॉलम की आपके पास वैल्यू होने चाहिए. ओके, उतने ही कॉलम की आपके पास वैल्यू होने चाहिए और उसी ऑर्डर में होने चाहिए. इवन यू कैन नॉट पुट इट एज फर्स्ट, लाइक आपको फर्स्ट नेम किया आपने और उसके बाद आप रोल नंबर कर रहे हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आपके टेबल में रोल नंबर जाएगा रोहित और फर्स्ट नेम जाएगा 2. सो अगेन इट्स व्हाट? इनवैलिड, राइट? So it will give an error. Okay. It will give an error because देखो ये रोहित नाम का जो डेटा है, it is not accepted as a integer here. तो आपको एरर ही आएगा हर समय. अब यहाँ पे ये randomly डेटा आएगा because it's not connected to the actual database server. Okay. तो जनरली आप सिंटैक्टिकली एरर दो ही मत, बट मान लीजिए कि आपको कॉलम के सीक्वेंस में ही कॉलम की वैल्यू देना है. Okay, so this value which we have put here, it is not valid. That is your syntax number 1, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, syntax 1 में यूज कर रहे हैं, syntax 1 में यूज कर रहे हैं insert into table name in bracket, कॉलम जितने भी कॉलम है उनके नाम देना है आपको, कॉमा सेपरेटेड, ब्रैकेट क्लोज, स्पेस वैल्यूज. वैल्यूज मतलब अब वो स्पेसिफाई करेगा उस हर कॉलम की वैल्यूज. ओके, एंड दीज आर व्हाट? लाइन बाय लाइन कोड. देखो पहले हमने क्रिएट किया है टेबल, तभी हम इंसर्ट कर पाएंगे. ओके, ऐसा नहीं होगा कि आप लाइन नंबर 1 में ये कोड लिखोगे तो इट अगेन से इनवैलिड कोड. फर्स्ट द टेबल शुड बी क्रिएटेड, और उस टेबल में आप क्या कर रहे हो, आप इंसर्ट कर रहे हो. ओके, so this is your first syntax number 1. Now in syntax 2, what is the change? Insert into table name values. देखो टेबल नेम दे रहा हूँ और डायरेक्टली मैं वैल्यूज दे रहा हूँ इन ओपनिंग ब्रैकेट. अब मैं डायरेक्टली वैल्यू दूंगा. ओके, मान लीजिए मेरे पास क्या था, फर्स्ट रोल नंबर और स्टूडेंट नेम था, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 3 नितेश, 4 पूजा, like whatever values I can give you. Now no need to specify the column name. We will try that also. Okay, insert into table name. Table name क्या था आपका, स्टूडेंट, राइट? इंसर्ट इनटू टेबल नेम. अब मैंने क्या किया था, पहले वैल्यू कॉलम स्पेसिफाई किए थे और उसकी वैल्यूज की थी. नाउ आई एम डायरेक्टली गिविंग द वैल्यूज इन स्टार्ट ब्रैकेट. अब मुझे क्या देना है, उसकी वैल्यू देना है. अगेन जिस फॉर्मेट में मैंने टेबल क्रिएट किया था उसी फॉर्मेट में मुझे क्या देना पड़ेगा, वैल्यू देना पड़ेगा. ओके, अब इस सिंटैक्स 1 में और सिंटैक्स 2 में एक डिफरेंस है, वो भी बताता हूँ आपको. अब यहाँ पे मुझे वैल्यू देना है, ऑलरेडी 1 2 है, तो मान लीजिए 3, it is my third entity for a student, and I am putting a name as. Okay, and again to complete the sentence, give the semicolon and try to run it. You can see the third student is added to the table. Okay, अब सिंटैक्स 1 में डिफरेंस क्या था, देखिए मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस क्या बताना है मुझे. ये जो सिंटैक्स 1 था आपका इंसर्ट के लिए, इसकी खासियत क्या है कि जो आपने ये दिया था कॉलम का सीक्वेंस, उसी कॉलम में आपको प्लेस करना है.
ओके, बट मान लीजिए मैं उसका सीक्वेंस चेंज करना चाहता हूँ. ओके, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, दैट इज व्हाट, स्टूडेंट. अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीक्वेंस चेंज करना चाहता हूँ. फर्स्ट आई वांट टू पुट एज अ फर्स्ट नेम, सॉरी, फर्स्ट नेम कॉमा रोल नंबर. देखो यहाँ पे सीक्वेंस मैंने चेंज किया है. देन आई एम पुटिंग एज कीवर्ड एज अ वैल्यूज. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज भी उसी सीक्वेंस में देनी पड़ेगी, राइट. मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है फोर स्टूडेंट का, जो भी मैं ऐड करना चाहूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल कोट अमित, सॉरी इट्स रिपीटेड, राइट. मान लीजिए ललित. ओके, एंड नेक्स्ट रोल नंबर इफ आई एम इंटरेस्टेड टू पुट इट एज अ 4. Okay, again sentence close. Now though I have changed the sequence, but उस टेबल में वो correct column में ही जाएगा, because we have specified the column, right. If I want to create it, see it will be created in that sequence. Again line by line ही कोड जाएगा. देखिए पहले सेकंड लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा, देन थर्ड एंड देन फोर्थ. दैट्स वाई जो थर्ड और पूजा है वो लास्ट इसमें है. बट अगेन व्हाट, द टेबल विल पिक एज पर योर कॉलम सीक्वेंस, बट वो करेक्ट कॉलम में जाएगा. दो यू कैन पुट लास्ट कॉलम नेम टू द फर्स्ट, आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाइए, बट मेक श्योर कि आप उस सीक्वेंस में ही उसके वैल्यूज पुट कर रहे होंगे. इज इट क्लियर? सिंटैक्स 1, सिंटैक्स 2 क्लियर हो आपको? Yes. Okay, so what you have to do as a practice is, now create as many as table with multiple datas. मतलब column की length आप बढ़ाइए उसमें. जैसे for example here we have used the column, right, so use different columns, as many as column, at least 4 to 5 columns, और variety लीजिए at least in terms of var and sorry in terms of varchar and this integer. Even don't even we will not deal with the float as of now. Okay, so मान लीजिए आप एक टेबल बनाइए, फॉर एग्जांपल एनी स्टूडेंट एम्प्लॉय टेबल विद देयर एम्प्लॉय आईडी, सीरियल नंबर, और नॉट सीरियल नंबर इज नॉट नीडेड बिकॉज वो ऑटोमेटिकली एक सीरियल में ही पुट करता है, तो सीरियल नंबर ये मीनिंगलेस बन जाता है. तो जस्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पिन कोड, सिटी नेम, सैलरी, ऐसा कुछ एक टेबल बनाइए आप. इट विल गिव यू द प्रैक्टिस, और आपको यहाँ पे जितने भी सिंटैक्स एरर होंगे वो दिखाई देंगे आपको बॉटम में, और नहीं होंगे तो ट्राई टू मेक इट एज पर द करेक्ट सिंटैक्स. अल्टीमेटली वो डेटा ऑटोमेटिकली फिल होगा. सॉरी, सो कैन यू डू इट? आप परफॉर्म कर पाओगे एक्शंस? एटलीस्ट क्रिएट मल्टीपल टेबल्स, try to insert as many as data with different syntax, like syntax number 1, syntax number 2, and try to fetch the same data. जैसे आप क्रिएट करोगे तो उसको फेच करने का भी ट्राई कीजिए आफ्टर ईच एंड एवरी क्वेरी. Okay, so this is what your syntax to fetch the data. तो हमने क्या देखा आज? Exactly the data type, then how to create the table, its syntax. उसके लिए एक ही syntax है, create table, which entity you want to create, table का नाम दीजिए, table name, and again follow the same syntax. Okay, अब यहाँ पे आप बस column name 1 है तो आपका column name 6 तक जाएगा, because if you are interested to put 6 columns. और उसी sequence में आपको क्या बताना है, उसका ये बताना है, what exactly the data type, its size, and make sure you are putting the closing bracket, because यहाँ पे क्या होता है, साइज के बाद और एक ब्रैकेट क्लोजिंग है और उसके बाद ओवरऑल ब्रैकेट क्लोजिंग है इस ब्रैकेट का. ओके, सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, ट्राई टू पुट इट एज सेपरेट लाइन. ओके, अगर आप ये नहीं हो कंफर्टेबल तो आप इसको सेपरेट लाइन में पुट कर सकते हो, नो इश्यूज. ओके, जस्ट टू अवॉइड द एरर्स. ये देखो यहाँ पे मैंने पहले लाइन में स्पेसिफाई किया पहला कॉलम नेम कॉमा सेकंड कॉलम नेम. ओके, देन अगर मुझे और स्पेसिफाई करना थर्ड कॉलम तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूंगा. ओके, एंटर करके, इफ इट इज देयर देन.
इज इट ओके देन? नो जस्ट प्रैक्टिस इट, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल्स आपको जब इस सिंटैक्स की प्रैक्टिस नहीं होती तो मल्टीपल टाइम आपको कंफ्यूजन होता है कि मैंने किस सीक्वेंस में पुट किया था. जस्ट ट्राई टू क्रिएट इट. ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, सो जो सब लैंग्वेज है आपके DDL DML, राइट? अब वो लैंग्वेज आप मतलब पता भी कर लोगे क्लासिफिकेशन, बट इन एक्चुअल जब आप फ्रिक्वेंटली उस टर्म को यूज करोगे तो वो आप यूज हो जाते हो, है ना? तो जैसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम क्रिएट यूज करते हैं. ओके, वी आर वांट टू क्रिएट द टेबल. तो आपको लेटर पॉइंट के बाद पता चल जाता है कि क्रिएट दिस टर्म इज बिलोंग टू विच लैंग्वेज, DDL. ओके, सो लाइक दैट. बट अभी यहाँ पे कहीं स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती कि इट्स कम्स अंडर DDL और समथिंग. एट लास्ट आपका सिंगल स्निपेट या जो भी कोड बनता है वो एक SQL क्वेरी माना जाएगा. सो इन दैट, लाइक वॉट एवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग, कि आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, कि क्रिएट कर रहे हो, कि कुछ चेंज कर रहे हो, दैट डजंट मैटर. जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने आपको बताया था कि उसकी क्लासिफिकेशन है ना, DDL, DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, DML, ओके, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL. तो ये क्या है, बस उसके टाइप से लैंग्वेज के एज पर देयर कमांड्स. ओके, सो जस्ट ट्राई टू क्रिएट द टेबल्स. और अगर आपके टेबल ये क्रिएट होता है सक्सेसफुली तो जस्ट ट्राई टू कॉपी दिस एंड ट्राई टू सेव इन योर नोटपैड. सो अगर आपको फर्दर आप कभी यूज करना है उस ऑपरेशन को तो आप उसको क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे. बिकॉज अगेन टाइपिंग दिस लेंदी लाइन्स एंड लेंदी कोड, इट विल टेक सम टाइम. और यहाँ पे काफी केयरफुली टाइप करना पड़ता है ना, कुछ एरर हो तो अगेन आपको वहां पे जाके वो क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा. अगर आप एक सेमीकोलन भी भूल जाते हो, ओके, सो इट विल थ्रो एन एरर. ओके, जैसे बताएगा लाइन नंबर इसमें कुछ मिसिंग है या जो भी है. ओके, सिंटैक्स, SQL सिंटैक्स. सो ट्राई करो कि सिंटैक्स एरर ना हो. इन एक्चुअल प्रैक्टिस आपको सिंटैक्स एरर तो ऑलरेडी बताए जाते हैं, और दे विल गिव द फॉर्मेट इन विच वी हैव टू यूज द क्वेरी. जनरली वो भी क्वेरी दी जाती है, बस आपको लॉजिकली डिजाइन करना पड़ता है क्वेरी. ओके, एंड अगेन मेक श्योर कि इस पे अगर आप आइडल हो इस सिस्टम पे तो उसको रिफ्रेश कीजिए. ओके, बिकॉज इफ इट इज नॉट रिफ्रेश तो कभी कभी वो सही दिखाएगा नहीं और टाइम आउट दिखाएगा. एंड अगेन इन दिस नोट्स आई हैव गिवन दैट लिंक आल्सो. जस्ट टॉप पे वो लिंक है, आपको कॉपी कीजिए आपके कोई भी ब्राउजर में या वेब पेज पे, यू विल बी लैंडिंग ऑन दैट पेज. ओके, सर वो 6 नंबर का जो है इंसर्ट इनटू टेबल, एक मिनट वहाँ जाइए सर प्लीज. ओके. तो हम डायरेक्टली वैसा लिख सकते हैं सर, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मतलब ये लिया है ना, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज. उसमें तो हमने इंटीजर और ये आपला ये तो मतलब रोल नंबर और फर्स्ट नेम ऐसा कुछ दिया नहीं है ना सर. तो डायरेक्टली हमने हमने ऑलरेडी टेबल क्रिएट किया है ना यहाँ पे, और उसी सीक्वेंस में हम दे रहे हैं यहाँ पे. अच्छा, ऑलरेडी क्रिएट टेबल है तभी तो ये ऑपरेशन होंगे. मैंने वही पहले कहा ना, आप इंसर्ट कर रहे हो तो प्रोवाइडेड कि आपका टेबल क्रिएट होना चाहिए. आपका टेबल क्रिएट किस सीक्वेंस में है, रोल नंबर और उसके बाद फर्स्ट नेम. अब उसी में ही आप बोल रहे हो कि उस स्टूडेंट में ही मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो उस स्टूडेंट का ऑलरेडी फॉर्मेट आपने बताया, फर्स्ट रोल नंबर है और देन फर्स्ट नेम, और उसी सीक्वेंस में आप क्या कर रहे हो, उसके वैल्यूज पुट कर रहे हो. ओके, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि टेबल के पहले कॉलम की सीक्वेंस स्पेसिफाई कर रहे हो. तो वो कुछ भी हो सकता है, आप पहले वो रोल नंबर बताना चाहते हो या फर्स्ट नेम, इट डिपेंड्स अपॉन यू. बट मेक श्योर कि आप जब वैल्यूज उसके सिक्वेंशियली पुट करोगे तो वो उसी सीक्वेंस में होना चाहिए. दैट फर्स्ट रोल नंबर और फर्स्ट नेम में ओके, देन इट्स दिस लाइन. मैंने बताया कि पहले मैं टेबल में फर्स्ट नेम की वैल्यू पुट करना चाहता हूँ और फिर रोल नंबर की वैल्यू पुट करना चाहता हूँ. ओके, उसी सीक्वेंस में आपने यहाँ पे वैल्यू दी, पहले मैंने नाम दिया फर्स्ट नेम एंड देन आई एम गिविंग दी इंटीजर. देन वो उसी सीक्वेंस में उसको लेगा, बट इट विल पुट इन द टेबल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली. ऐसा नहीं होगा कि सर अब फर्स्ट नेम का कॉलम पहले आ जाएगा क्या, नहीं. तो जो हमने स्पेसिफाई किया था क्रिएट टेबल करते समय, वही सीक्वेंस उसका मेंटेन रहेगा. ओके, यस सर.
ओके सो ट्राई टू प्रैक्टिस विथ मल्टीपल टेबल्स, कॉलम की लेंथ बढ़ाइए और अलग अलग वैल्यूज के साथ ट्राई कीजिए। मेक श्योर कि आप इंटीजर वैल्यू को कोट देने की जरूरत नहीं है और जो भी आपके वेर कैर है उसको सिंगल कोट देना है। इट्स अ सिंटैक्स। ओके ओके so if there is no doubt we can stop here. Okay okay thank you. ओके